Good morning, students. Hope you all are fine. So, let's start with today's topic, that is diversity in the living world. Yesterday, we have discussed the various definitions about the taxonomy, nomenclature, identification, and why these fields are necessary to characterize a organism. So, you can see there are different codes for the nomenclature. There were different organization. अगर कोई organism discover होता है, राइट तो उनको नाम डिफरेंट नॉमेनक्लेचर जो कोड्स हैं उनके द्वारा दिया जाता है. ठीक है. सो सबसे पहले है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट हैज़ बीन गिवन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICBN, एंड ICZN, that is zoological nomenclature. So there are the different field, there are different 5 codes which have been given here. So let me give you the names about that. First one is International Code of Botanical Nomenclature, that is ICBN. Clear? Second one is International Code of Zoological Nomenclature. तो सबसे पहला हो गया ICBN, which is given in your NCERT. The second one is ICZN, यानी Zoological Nomenclature. Number 3 is International Code of Bacteriological Nomenclature, ICBACN. BAC is for bacteriological. Clear? International Code for Bacteriological Nomenclature. Next, number 4 is International Code of Viral Nomenclature. So ICVN, Viral Nomenclature. And the last one is International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. I repeat, International Code of Nomenclature of Cultivated Plants. So it is ICNCP. Clear? I repeat, International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. So these are the different 5 codes for the nomenclature. And we also discussed about the various rules, isn't it? Some rules we have discussed, like the generic name should start with the capital letter and specific name should be starts with small letter. So here is some example you can see. So binomial nomenclature was given by Carolus Linnaeus, है ना? And this biological system is known as binomial nomenclature. So for example, we take an example of mango. Mango, the scientific name for mango is Mangifera indica. You can see here Mangifera indica. M, capital M है यहाँ पे, small I है. Mangifera is genus name and indica is specific epithet. So first, the first rule of the nomenclature is biological names are generally in Latin and they're written in italics. They are Latinized and derived from the Latin irrespective of their origin. Clear? So जो biological names हैं, इनको किस में जनरली किस में होते हैं, ये लैटिन में होते हैं, उनको किस में लिखा जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है. क्लियर? तो इनके जो ओरिजिनल नेम्स थे, दे वर टेकन फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस. न्यू नेम्स जो अब आ रहे हैं डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज एंड दे आर लैटिनाइज्ड. क्लियर? ओके. सो द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड जो सेकेंड नेम होता है वो डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट. जैसे यहाँ मैंगीफेरा जो है वो है जीनस नेम एंड इंडिका है स्पेसिफिक एपिथेट. बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड. अगर आप इन बायोलॉजिकल नेम्स को अपनी नोटबुक में लिखते हो, कहीं लिखते हो, तो इनको अंडरलाइन किया जाना चाहिए और सेपरेटली. ऐसा नहीं है कि आपने मैंगीफेरा इंडिका लिखा और आपने इसको यूँ अंडरलाइन कर दिया. नहीं, मैंगीफेरा लिखने के बाद आप उसको अंडरलाइन करोगे, फिर जब इंडिका लिखोगे उसको अलग से अंडरलाइन करोगे. क्लियर? ओके. द लास्ट वन, the first word denoting the genus starts with capital letter and specific epithet starts with a small letter. I told you already. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दिस. सो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये आपको पता है, राइट? सो बेसिकली हम अगर किसी प्लांट को डिस्कवर करते हैं, किसी एनिमल को डिस्कवर करते हैं, तो उसके लिए हमने क्लासिफिकेशन डिनोट कर रखी है, क्योंकि उन ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के हिसाब से हम उनकी डिफरेंट क्लासेस में प्लेस कर सकते हैं. क्लियर? सो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. कि वो कैसा है,
फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हमने क्यों करेक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट नहीं कर सकते, उनके पास पिगमेंट्स हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए वो प्लांटे किंगडम में आते हैं, राइट। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर सकते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, है ना, तो इसलिए हमने उनको एनिमल कैटेगरी में रखा है। सो वी आर इजीली टू रिकग्नाइज द ग्रुप ऑफ वेदर इट्स अ प्लांट, वेदर इट्स एनिमल, वेदर इट्स इंसेक्ट, वेदर इट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर। सिमिलरली अगर हम लेके चलते हैं, एनिमल्स में भी हम डिफरेंट फाइलम्स के अंदर इनको डिवाइड करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म की अपनी की यूनिक स्पेशलिटी होती है, एक सिमिलैरिटी है, एक डिससिमिलैरिटी है, इजंट इट। उनके बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, राइट। सो जो साइंटिफिक टर्म यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, उसको हम बोलते हैं टैक्सा। क्या बोलते हैं हम? टैक्सा, राइट। सो हेयर आर द डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अगर हम देखें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट यू कह सकते हो कि फाइलम्स में या डिफरेंट क्लासेस में अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो वो कैसे आएगा? यहाँ पे इन्होंने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दे रखी हैं। तो ये सिस्टमैटिक्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड में। ये चीज़ें जो यहाँ पर आपको दी गई हैं एनसीईआरटी में, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द टैक्सोनॉमी एंड आई हैव गिवन यू, आई टोल्ड यू अबाउट द टैक्सा राइट नाउ, राइट। सो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टैक्सोनॉमिक categories. So let's start. Okay. So in taxonomic categories, आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो taxonomic categories हैं, it was given by Linnaeus itself. तो इसको हम Linnaean hierarchy भी बोलते हैं because it was first proposed by Linnaeus. Clear? So hierarchy of categories is nothing but the classification of organism in a definite sequence of categories. अब ये categories क्या है? अगर हम इनको देखें, इन कैटेगरीज के अंदर क्या आता है, उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये ओके। सो एक हायरार्की के अंदर सबसे ऊपर लेवल पे होता है किंगडम। क्या होता है? किंगडम। उसके बाद आते हैं फाइलम, उसके बाद आते हैं क्लास, आफ्टर क्लास ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, एंड द स्मॉलेस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमी हायरार्की इज स्पीशीज। ठीक है, तो ये सारी जो हायरार्की है वो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, उसमें डिफरेंट अरेंजमेंट दिखा रखी है ना, डिफरेंट क्लासेस की। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आएगा किंगडम, फिर फाइलम। अगर वो प्लांट है तो डिवीजन हम कह सकते हैं फाइलम की जगह, और वो एनिमल है तो उसको हम फाइलम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लास, उसके बाद ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, एंड सबसे छोटे क्या इकाई है हमारी? स्पीशीज़। तो आप ये कह सकते हो कि कुछ ऑर्गेनिज्म की जो एक जैसी स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ के अंदर क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स को रखा जाता है, इजंट इट। सो स्पीशीज़ के बाद वो ग्रुप होके क्या बनाएंगे? जीनस। जीनस together they make family, and family together 2 to 3 family makes an order, and 2 to 3 orders makes a class, and 2 to 3 class makes a phylum, and this is how phylum को किंगडम के अंदर सपोज अगर हम बात करते हैं हमारे एनिमल किंगडम की, तो उसके अंदर डिफरेंट फाइलम्स प्लेस किए गए हैं उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के हिसाब से। तो वो सब आएंगे किस में? लेकिन किंगडम में। कौन से किंगडम में? एनिमल्स के अंदर, राइट। सो दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी हायरार्की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इट वाज गिवन बाय कैरोलस लाइनियस। ठीक है बेटा, ओके। सो वी नो दैट ईच कैटेगरी, क्लासिफिकेशन में अभी हमने पढ़ा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इजंट इट। ईच जो यूनिट है क्लासिफिकेशन की, इसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सा या टैक्सोन। क्या बोलेंगे? टैक्सा या टैक्सोन। क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, ह्यूमन बींग्स यहाँ पे जो कॉमन नेम है, अगर हम इसका स्पेसिफिक नेम या साइंटिफिक नेम अगर हम जानते हैं तो वो है होमो सेपियंस। लेट मी राइट, होमो सेपियंस। ठीक है, अब ये जो इसमें होमो है ये हमारा है जीनस, और ये जो सेपियंस है ये क्या है हमारी? क्या है? स्पीशीज। क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज। ये जो होमो सेपियंस, जो जीनस और स्पीशीज हैं, ये किस फैमिली में आते हैं? होमिनिडे। होमिनिडे, ठीक है। एंड ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेट, प्राइमेटा।
क्लास किस में आएंगे, मैमेलिया। फाइलम क्या है, कॉर्डेट्स, क्योंकि हमारे पास नोटोकॉर्ड है, आप कह सकते हो वर्टिबल कॉलम है, तो फाइलम हमारा आएगा कॉर्डेटा। एंड सिंस वी बिलोंग टू एनिमल कैटेगरी, सो हमारा जो किंगडम होगा वो क्या होगा, एनिमीलिया, राइट, एनिमीलिया। सो let's start with the species, which is the smallest unit of taxonomy hierarchy. So species is a natural population of individual, you can say, or a group of population which resemble each other. ठीक है, एक दूसरे को रिसेंबल करते हैं, आप कह सकते हो मॉर्फोलॉजिकली, रिप्रोडक्टिवली, कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके पास, एंड दे कैन एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो वो सब किस में आएंगे, स्पीशीज़ में। फॉर एग्जाम्पल मैंगो इज़ अ स्पीशीज़ इंडिका ऑफ जीनस मैंगीफेरा, है ना। पोटैटो इज़ अ यू कैन से पोटैटो स्पीशीज़ ट्यूबरोसम ऑफ जीनस सोलैनम। तो पूरा जो पोटैटो का नाम आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, सोलैनम ट्यूबरोसम। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैंगीफेरा इंडिका, सोलैनम, लेट मी अंडरलाइन, मैंगीफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा, इजंट इट। सो लियो जो स्पीशीज़ है, लायन की जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, तो ये किस में आएंगे, पैंथेरा, किस में आएंगे, पैंथेरा। तो इसमें पैंथेरा इज़ द जीनस एंड लियो इज़ द स्पीशीज़, ठीक है। वेयर एज द टाइगर की जो स्पीशीज़ यहाँ पे मेंशन है वो हमारी स्पीशीज़ आएगी टिग्रिस एंड जीनस आएगा पैंथेरा। क्लियर बेटा। सो ईच स्पीशीज़ इज कॉल्ड जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं इनको आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जीनस। नेक्स्ट क्या आता है, जीनस। तो स्पीशीज़ में हमने पढ़ा कि क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं वो स्पीशीज़ में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीनस। सो इट इज़ अ ग्रुप and assemblage of related species which resemble one another in certain correlated characters। एक दूसरे को कहीं कुछ कैरेक्टर्स में ही रिसेंबल करते हैं ये, ठीक है। सो कोरिलेटर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दोज आर सिमिलर एंड कॉमन फीचर्स विच आर यूज्ड इन यू कैन से इन अ कॉमन टैक्सॉन, राइट। ऑल स्पीशीज ऑफ जीनस आर हैव टू इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। ये बात भी हमें क्लियरली ध्यान देनी है। अब यहाँ पे जीनस में इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीशीज बट दे बिलोंग टू अ कॉमन जीनस कॉल्ड सोलैनम। आपको ये भी पता है, आलू, टमाटर और ब्रिंजल तीनों स्पीशीज अलग अलग है ना, अलग अलग है या नहीं है, लेकिन ये एक कॉमन जीनस को बिलोंग करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि तीनों डिफरेंट स्पीशीज हैं बट दे बिलोंग टू कॉमन जीनस कॉल्ड सोलैनम। अब अगर आप देखें लायन, लेपर्ड, टाइगर, है ना, दिस दे हैव सेवरल कॉमन फीचर्स हैं बट ऑल स्पीशीज ऑफ जीनस दे फॉर्म द पैंथेरा, राइट। लायन, टाइगर एंड आप कह सकते हो लियोपर्ड, ये तीनों ही अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन ये किसके अंदर आती हैं, एक कॉमन जीनस के अंदर आती हैं विच इज़ पैंथेरा, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट इज फैमिली। आप कह सकते हो कि फैमिली इट इज़ अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन वन और मोर रिलेटेड जेनेरा। अब 2 तो 3 स्पीशीज़ मिलके जीनस बना रही थी, अब 2-3 जीनस मिलके जो कॉमन है एक दूसरे में कुछ फीचर शेयर कर रहे हैं वो क्या बनाएंगे, फैमिली। सो इट इज़ अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन वन और मोर रिलेटेड जीनस। क्लियर। सो you can say कि all the genera of a family have common features और correlated character। जैसे कि thus genera जो है cat and leopard are commonly placed in a family called Felidae। अब ये जो cat है या आप कह सकते हो आपका पैंथर है, ये किसके अंदर आएंगे कॉमनली, किस फैमिली के अंदर आएंगे, फेलिडे। किसके अंदर आएंगे, फेलिडे। सो कैट्स का जो जीनस नेम है वो है फेलिस एंड लेपर्ड्स का जो जीनस नेम है वो पैंथेरा विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। सो दे कम्स अंडर फैमिली कॉल्ड फेलिडे, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो जीनस हैं वो कंबाइन होके क्या बनाएंगे, आपकी फैमिली। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे मेंबर्स हैं फेलिडे के, दे आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ फैमिली कैनिडे। अब कैनिडे में क्या क्या आता है, कैनिडे में आते हैं डॉग्स, फॉक्सेस, वुल्फ्स। आप देखोगे डॉग, फॉक्सेस और जो वुल्फ्स हैं ये अलग अलग फैमिली, अलग अलग जीनस को मेंटेन किए हुए हैं, अलग अलग स्पीशीज़ हैं, फिर उन्होंने मिलकर जीनस बनाया, लेकिन दे बिलोंग टू अ कॉमन फैमिली कॉल्ड कैनिडे। दे बिलोंग टू अ कॉमन फैमिली कॉल्ड
कैनिडे। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आप देख सकते हो। जीनस पैंथेरा कंप्रोमाइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट टुगेदर विद द जीनस फेलिस इन द फैमिली कॉल्ड फेलिडे। ठीक है, इसी तरह जो हमारे कैनिडे हैं या कि आप कैंसिडे हैं, जो उसके अंदर आते हैं डॉग्स, फॉक्सेस एंड वुल्व्स, दे बिलोंग टू अ कॉमन family called Canidae. So that's all for today's class. In the next class we will discuss about the class division and the kingdom.